Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to solve the objective questions of a chapter number 7 which is nothing but the pricing practices. Pricing practices chapter के objectives हम आज solve करेंगे. इसके पहले हमने pricing practices chapter में कुछ topics important cover किए हुए हैं जिसमें most important part है आपका dumping का. What do you mean by the dumping? Already हमने covered up किया हुआ है. Then likewise there are the other concepts which we have covered in the pricing practices. So we're going to see the certain important topics के related objectives in this particular session, and the most important part which is nothing but we're going to solve today the very important objective of your Manan Prakashan textbook chapter number 7 pricing practices. तो जरा ध्यान देना यहाँ पे. स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से. एज यू कैन सी नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इफ यू गोइंग टू सी द फर्स्ट वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. What do you mean by the price discrimination? Price discrimination refers to the charging the different prices to the different peoples. Charging of a different prices to the different customers is known as what? Your price discrimination. तो यहाँ पे जरा देखना options. Price discrimination refers to the charging the different prices for the different products, charging the same prices from the different buyer, charging the same price for the different product, or charging the different prices for the same product from the different buyer. Now which option is correct? Over here as you can see, pricing discrimination means what? We are charging the different prices to the different customers for the same product. So option number 1, option number 2 and option number 3 is incorrect. If you're going to see which option is correct for you, that is nothing but changing different changes which are taking place over here, the charging the different prices for the same product to the different buyers. That is nothing but the option number D is correct over here. Now come to the next one. Next objective, if we're going to see what exactly it is, it's related to the degree of a price discrimination. Class, ये जो degree of a price, changing the degree of a price discrimination, types of a degree of a price discrimination, ये सब थोड़ी important topics हैं यहाँ पे जो हम लोग cover करने वाले हैं. The important topic which we will going to cover today is nothing but the second one. जरा ध्यान देना, second MCQ. अब second MCQ के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे? What it explains? Dash take place when the different prices are charged in the different market which are located geographically at a distance. Dash take place when the different prices, we are charging the different prices, are charged in a different market which are located geographically at a particular distance. Geographically it is far away from one place to another place. So first degree price discrimination, no. Second degree price discrimination, नहीं. Now there is a no concept of a fourth degree price discrimination. ये यहाँ पे होता नहीं है. अब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये होता है बहुत स्मॉल लेवल पे. जैसे डॉक्टर एग्जांपल आप ले सकते हो डॉक्टर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, लॉयर्स का. नाउ दे आर चार्जिंग द डिफरेंट प्राइजेस फॉर द डिफरेंट केसेस टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स. सो इनफैक्ट दे आर नॉट अवेयर कि हम कितने डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कितना डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट कस्टमर्स को, वो उनको खुद को पता नहीं होता है इन द फर्स्ट केस ऑफ अ डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी the second degree of a price discrimination, over here we are charging the different prices based upon the different type of a market, based upon the few other factors. But the third degree price discrimination, over here we are specifically focusing on the geographically located distances, geographically located different markets. The examples we have taken of the Mumbai and the Pune, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने उन्हें लिए हुए हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्केट में अगर हमें गुड्स सेल करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मार्केट के प्राइजेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते. वी आर गोइंग टू चार्ज द डिफरेंट प्राइजेस इन द डिफरेंट मार्केट. दैट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नाउ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन. इसके बाद नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? The next MCQ, which of the following statement is true about the first degree price discrimination? जैसा मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है क्लास? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए. सो दैट इज नथिंग बट द ईच मार्केट सेगमेंट इज चार्ज अ डिफरेंट प्राइस. नो. कैन नॉट प्रैक्टिस्ड इन द केस ऑफ अ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज. नो. Then each consumer is charged a different prices for the same goods or the services sold. Yes. So over here each consumer is charged the different prices for the same goods or the services which we are selling over here, and it is possible to be the practiced in the perfect competition. No.
यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका होता है मोनोपोली में। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। ईच मार्केट सेगमेंटेशन इज चार्ज डिफरेंट प्राइजेस, ये आपका होता है सेकंड डिग्री ऑफ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन द केस ऑफ अ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, नो। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये पर्सनलाइज सर्विसेज के केस में ही हम लोग चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे है कि अगर ये ऑप्शन में इट कैन नॉट, अगर कैन नॉट का एन नॉट हट जाए, कैन बी प्रैक्टिस इन द केस ऑफ अ पर्सनलाइज सर्विसेज, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज किया दैट इज नथिंग बट द कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ अ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, दैट मीन्स व्हाट ओवर हियर the personalized services may we cannot use the price discrimination, no it is incorrect, ये यहाँ पे गलत हो गया। तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर? करेक्ट आंसर आपका सीधे और साफ लफ्जों में आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The next one is what your, the next one, under which of the following condition will the price discrimination be possible? Now price discrimination यहाँ पे कहाँ पे पॉसिबल है, कौन से सिचुएशन में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? व्हेन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, अगर हम गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक मार्केट से अनदर मार्केट में, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही है कि यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर ये ट्रांसफ़र होता है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कस्टमर्स क्या करेंगे, जहाँ पे प्राइजेस कम है वहाँ से सब कस्टमर्स क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे एंड दे विल गोइंग टू सेटिस्फाई देयर वांट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ओवर हियर, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है, और डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, डिफरेंट प्राइस चार्ज करने के लिए हमें ट्रांसफ़र को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। when there are no political and tariff barrier between the different market, no there has to be the political and tariff barriers between the different market, तभी जाके क्या होगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का भी करेक्ट होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है। सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड, नो। द पॉलिटिकल बैरियर्स होना चाहिए, नो पॉलिटिकल बैरियर्स, नो पॉलिटिकल बैरियर हैज़ टू बी देयर। सो ये नो वर्ड की जगह, नो वर्ड की वजह से ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, व्हेन द कंज्यूमर हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट क्लास, अगर कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। डिस्क्रिमिनेशन कब होगा, डिफरेंट प्राइजेस हम कब चार्ज करेंगे, जब कस्टमर्स के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। देयर हैज़ टू बी द लैक ऑफ एस्टिमेटिक इन्फॉर्मेशन, देयर हैज़ टू बी द पॉसिबिलिटी ऑफ wrong information, the false information at the time of a purchase and sell with the consumer, and the consumers are ignorant about the price differences in the market. So ये best आपका option है किसके लिए, is this for this particular question कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे पॉसिबल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है जहाँ पे कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो कंज्यूमर्स को प्राइस डिफरेंसेस के बारे में पता ही नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ना ही कि इन अबव 3 केसेस, ये ऊपर के तीनों केसेस के अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है आपका, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल व्हेन। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दो ऑप्शंस हम लोग ने देखे थे, देयर आर द टू थिंग्स, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड द टोटल आउटपुट। सो इलास्टिसिटी इन डिमांड एंड द टोटल आउटपुट और द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉन्सेप्ट कर्व कॉन्सेप्ट्स, so those things we are using for the profit maximization। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन the price elasticity of a demand in different market or the segments are different। तो यहाँ पे आपको याद होगा हमने ऑप्शंस देखे थे, इन इलास्टिक मार्केट का और एक था इलास्टिक मार्केट। अगर आप 2 डिफरेंट मार्केट्स में आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। सेकंड ऑप्शन, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इन द डिफरेंट मार्केट और द सेगमेंट्स आर सेम, नहीं, दोनों मार्केट्स में सेम अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट और यू कैन नॉट डू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओवर देयर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमें क्या है, 2 टाइप के मार्केट चाहिए, एक जगह पे इलास्टिक मार्केट होना चाहिए, इलास्टिक डिमांड होना चाहिए, और एक जगह पे इन इलास्टिक और फिक्स डिमांड होना चाहिए। तो जहाँ पे फिक्स डिमांड है वहाँ पे कम सप्लाई करना है, जहाँ पे
इलास्टिक डिमांड है वहाँ पे हमें ज़्यादा सप्लाई करना है, ज़्यादा सप्लाई करके ज़्यादा पैसे अर्न करने बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इलास्टिक डिमांड एंड बाय फ्लक्चुएटिंग द प्राइजेस और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पुटिंग द प्राइजेस इन द इलास्टिक डिमांड केस। तो वो सब सिचुएशंस क्या है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। सो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? द आंसर फॉर द फिफ्थ वन इज फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। ये हमारा क्या है? आंसर है। द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी in the case of a price discrimination when the price elasticity of a demand into the two market segments are different. In case of a price discrimination when the price elasticity of demand in the two market segments are different. दो market segment में price elasticity of demand कब different है? First, the monopolist will charge a lower price in the less elastic market and a higher price in the more elastic market. नहीं, अभी मैंने बताया आपको फिक्स्ड डिमांड के केस में और इन इलास्टिक डिमांड के केस में हमें क्या करना है? हाई प्राइस चार्ज करना है। और जहाँ पे आपका इलास्टिक डिमांड होगा वहाँ पे हमें लो प्राइस चार्ज करनी है। जहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है वहाँ पे हाई प्राइस, जहाँ पे इलास्टिक डिमांड है, जहाँ पे डिमांड चेंज हो सकता है प्राइस के हल्का चेंज होने से, दैट ओवर देयर विल गोइंग टू चार्ज द लोअर प्राइस। सो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी, पहला केस क्या है हमारा? लेस इलास्टिक के केस में हम लो प्राइस चार्ज करें और हाई प्राइस कहाँ पे चार्ज करें? मोर इलास्टिक के केस में, जो कि ये क्या है? ये रॉन्ग है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज द हायर प्राइस इन द लेस इलास्टिक मार्केट एंड द लोअर प्राइस इन द मोर इलास्टिक मार्केट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इलास्टिक मार्केट है तो लो प्राइस चार्ज करना है और इन इलास्टिक मार्केट है तो आपको हाई प्राइस चार्ज करना है। दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन। देन द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज द सेम प्राइसेस। नहीं, सेम प्राइसेस नहीं चार्ज करना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें करना है। और द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज द लोअर प्राइस। नो, मोनोपोली मार्केट में हम प्राइसेस लोअर चार्ज नहीं करेंगे। लेस इलास्टिक मार्केट में हमें क्या करना है? जहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है, जहाँ पे आपको लगा कि आपके कमोडिटीज़ का मार्केट में डिमांड फिक्स्ड है, वहाँ पे आपको हाई प्राइस चार्ज करना है, क्योंकि हाई प्राइस पे भी कस्टमर्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। एंड इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है कि इलास्टिक डिमांड एक ऐसा केस है जहाँ पे आपके डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विल गोइंग टू चेंज व्हेन यू विल गोइंग टू चेंज योर प्राइस। प्राइस के हल्का चेंज होने से आपका डिमांड तुरंत इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, और चेंज भी होगा तो ज़्यादा प्रपोर्शन से, ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होगा। अगर आप 10% से प्राइस चेंज करते तो हो सकता है डिमांड आपका मोर देन 10% चेंज हो, 50% से चेंज हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो वैसे सिचुएशंस में हमें बहुत ही लो प्राइसेस चार्ज करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट वन, द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स द टोटल आउटपुट बिटवीन द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स टिल द पॉइंट फ्रॉम वेयर, till the where we're going to charge the discriminating monopolist distributes the total output between the different market segment where the marginal revenue in the each market segment is different, where the total revenue in the each market segment is same, where the average revenue in the each market is different, or where MR in all the market is same। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप तो वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट सेगमेंट इज डिफरेंट। अगर मार्जिनल रेवेन्यू आपका डिफरेंट होगा तो वहाँ पे हम अपने आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने एक सिचुएशन देखा था। वी हैव सीन द सिचुएशन, लेट्स से दिस इज अ मार्केट ए, दिस इज मार्केट बी एंड दिस इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, द कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एमसी कर्व दोनों मिलके क्या बनाते थे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता था वो ए और बी में हम क्या कर सकते थे? हमने क्या करना है? हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते थे जो भी कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यूज और मार्जिनल कॉस्ट का इंटरसेक्शन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिला है। और ये जो कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू है, ये कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू को दोनों फर्म में इक्वली क्या करते थे? हम डिवाइड करते थे। तो वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इन ऑल द मार्केट इज सेम या फिर इक्वल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। Come to the next one. Following is not a features of equilibrium under the price discriminating monopoly. अब ये सिंपल सा केस है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे हम लोग रीड नहीं करेंगे। We can see directly कि which of the following is not a feature of equilibrium under the price discriminating monopoly.
प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के केस में इसमें से कौन से फीचर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते, कौन से फीचर्स नहीं हैं? तो पहला, प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिफरेंट मार्केट सेगमेंट होना चाहिए और इट शुड ऑल्सो डिफर इन द प्राइस इलास्टिसिटी। कहीं पे इलास्टिक डिमांड होना चाहिए, कहीं पे इन इलास्टिक डिमांड होना चाहिए। सेकेंड, द इक्वलाइजेशन ऑफ द MR इन ऑल द मार्केट डिटरमाइंस द आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे डिपेंड होता है? तो आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होगा जब दोनों मार्केट में, इन द टू डिफरेंट मार्केट, आपका मार्जिनल रेवेन्यू का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए in that case. And the third one, marginal revenue is not equal to the combined marginal cost at the point of equilibrium. No, combined marginal cost नाम का यहाँ पे चीज़ ही नहीं है. We are talking about the combined marginal revenue and your marginal cost. So it is not like कि marginal revenue and marginal combined marginal cost, ये concept यहाँ पे है ही नहीं. हमारा concept क्या है? हमारा concept है combined marginal revenue का और marginal cost का. So what is the answer over here? If you're going to see, marginal revenue is not equal to the combination and marginal cost at the point of equilibrium. ये statement क्या है? ये statement आपका feature नहीं है equilibrium under the price discriminating monopoly में. बाकी others, marginal revenue is equal to the combined marginal cost at a point of equilibrium. ये भी क्या है आपका? एक future, एक feature है in case of a in case of equilibrium under the price discriminating monopoly. So this is exactly is the situation which we have discussed. Now the next one is what? Ninth one, which of the following statement is true about the dumping? Now dumping में होता क्या है? Dumping एक ऐसा situation है, एक ऐसा market है जहाँ पे there are the two things, monopoly and the perfect competition. अब dumping के केस में जो सिंगल सेलर होता है वो खुद के मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है. वो क्या करता है? खुद के मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट करता है डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइसेस होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, वो पर्टिकुलर प्राइस पे अपने कमोडिटीज़ वहाँ पे सेल करता है. सो इन केस डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली और इंटरनेशनल मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन. सो द सेलर इज अ मोनोपोलिस्ट इन द वर्ल्ड मार्केट एंड फेसेस द परफेक्ट कंपटीशन इन द होम मार्केट. नहीं, दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट. A seller in the monopolist in the home market and faces the perfect competition in the world market. जैसा मैंने अभी बताया आपको कि डोमेस्टिक मार्केट, होम मार्केट में विद इन द कंट्री हम मोनोपोलिस्ट है, और आउटसाइड द कंट्री जैसे आते हैं हम क्या हो जाते हैं? वहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाते हैं. क्यों? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वहाँ पे बहुत सारे मोनोपोलिस्ट होंगे. जैसे हमारे यहाँ पे मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, वैसे बहुत सारे वैसे अदर इंडस्ट्रीज़ भी होंगे, अदर कंपनीज़ भी होंगे, अदर सेलर्स भी होंगे जो अपने अपने स्टेट और अपने अपने रीजन में सिंगल सेलर होंगे, और वो पर्टिकुलर मार्केट में अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट एक्सपांशन के लिए आए होंगे. तो वहाँ पे भी हमसे क्या करना है? हमें कम्पीट करना है. तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए. बाकी के रेस्ट अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. Come to the 10th one. Dash dumping take place when there is a temporary sell of a commodity at a lower price in the international market to drive out the competition. There is a temporary sell of a commodities at a lower price in the international market to drive out the competition. So drive out the competition के लिए हम क्या करते हैं? We are using the predatory dumping. ना स्पॉरेडिक डंपिंग में क्या होता है? स्पॉरेडिक डंपिंग में हम क्या करते हैं? डंप करते हैं बहुत सारे आउटपुट एक स्मॉल प्राइस पे हम किसी पर्टिकुलर मार्केट में डंप कर देते हैं. दैट इज नोन एज स्पॉरेडिक. स्टैंडर्ड डंपिंग, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक स्टैंडर्ड डंपिंग. एंड परसिस्टेंट डंपिंग. परसिस्टेंट डंपिंग में क्या होता है? एक फिक्स पर्टिकुलर प्राइस पे हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को सेल करते हैं, कॉम्पीट करते हैं. तो यहाँ पे लो प्राइस चार्ज हो रहा है, एक फिक्स प्राइस पे कॉम्पीट करके हम परसिस्टेंट डंपिंग को देखते हैं. लाइकवाइज The primary objective of the sporadic dumping is what? जैसा मैंने अभी बताया आपको, to unload the excess stock of unsold goods. जो भी हमारे पास goods and services पड़े होंगे, instead of wasting those goods and services and जिसका डिमांड हमारे मार्केट में नहीं है, ऐसे goods and services हम क्या करते हैं? डंप करते हैं. कहाँ पे? अदर कंट्रीज़ में. सो द ड्राइव आउट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नहीं, ये कहाँ पे होता है? प्रीडेटरी में. फिर गेन द मोनोपोली पावर इन द होम मार्केट नहीं. क्रिएट इंटरनेशनल कार्टल नहीं. तो व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर इज योर
अनलोड द एक्सेस स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो कि स्पोरेडिक डंपिंग में होता है। चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी इन केस ऑफ अ डंपिंग द डिमांड का फेस बाय द सेलर इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखना यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं डंपिंग के केस में, दो चीज़ें होती है, एक मोनोपोली मार्केट होता है और एक परफेक्ट कंपटीशन। तो मोनोपोली के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है और परफेक्ट कंपटीशन के केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ पे आपका डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है और परफेक्ट कंपटीशन में आपका कर्व क्या होता है, कर्व होता है आपका परफेक्ट इलास्टिक। बात समझ में आ रही है? कर्व क्या होता है आपका, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी 13, इन केस ऑफ अ डंपिंग द डिमांड कर्व फेस बाय द सेलर इन द होम मार्केट। जैसा अभी हमने बताया आपको कि मोनोपोली के केस में क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक, और इसके केस में परफेक्टली इलास्टिक। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमांड्स कर्व की ध्यान दो, डिमांड्स कर्व के बारे में जब बात करते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक होता है आपका पीसी, पीसी मतलब परफेक्ट कंपटीशन में। रिलेटिवली इनइलास्टिक कहाँ पे होता है आपका, मोनोपोली में। रिलेटिवली इलास्टिक कहाँ पे होता है आपका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जो कि यहाँ पे इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डंपिंग बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि मोनोपोली कंपटीशन में रिलेटिवली इलास्टिक होता है और परफेक्टली इनइलास्टिक देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वन 14th, इन केस ऑफ अ डंपिंग द प्राइस चार्ज इन द होम मार्केट इज व्हाट। डंपिंग के केस में होम मार्केट में हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में लो प्राइस चार्ज करते हैं। सो विल गोइंग टू चार्ज द लोअर प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट, यस। विल बी द सेम एज इन द इंटरनेशनल मार्केट, नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होम मार्केट। होम मार्केट में क्या करते हैं हम, तो होम मार्केट में कुछ ऐसा है, विल गोइंग टू चार्ज द हायर प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट, विल बी हायर देन द इंटरनेशनल मार्केट। जो होम मार्केट में हमारा प्राइस जो चार्ज होगा वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि होम मार्केट में हमारा मोनोपोली मार्केट होता है। होम मार्केट में हम मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर। जब सिंगल सेलर होते हैं तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि हाई प्राइस आप चार्ज करोगे। जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेलिंग होगा, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हमें चार्ज करना है। दैट इज नथिंग बट एग्जैक्टली इज द सेम। नेक्स्ट वन, स्टेट विद द रीजन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। चलो देखते हैं। द फर्स्ट वन क्विकली, फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोडक्ट मस्ट बी डिफर इन द क्वालिटी, नो, it must not be differ in the quality, that's why it is false. Next one, in the first degree price discrimination each customer is charged at different prices for the same goods and services. The best example you can take of a chartered accountant, lawyers and the doctors. So that's why what is this, the answer for this second one is true. Third one देखें, price discrimination is possible when the customer know each other and commodity is transferable. See, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए कस्टमर्स नोज ईच अदर, नो, कस्टमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर। सेकेंड, द कमोडिटी मस्ट नॉट बी ट्रांसफरेबल। अगर ये ट्रांसफरेबल है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल इफ द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज द सेम इन द डिफरेंट मार्केट, यस ट्रू। इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड, there are the two kinds of a demand must be there in the different market, then it is profitable, or else it is not a profitable one. ये profitable है नहीं। इलास्टिक डिमांड एक मार्केट में होना चाहिए और दूसरे मार्केट में इन इलास्टिक डिमांड होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। Then the price discriminating monopolist distribute his output between the two markets till the AR is equals in the both the market, no। क्लास यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट डिस्ट्रीब्यूट हिज आउटपुट। अब आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू रॉन्ग, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होगा, इक्वल होगा दोनों मार्केट में। तो यहाँ पे हम बात एवरेज रेवेन्यू की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। जब मार्जिनल रेवेन्यू होता है तभी आउटपुट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दैट्स वाई सिंस ओवर हियर विच ऑप्शन दे हैव गिवन द ऑप्शन ऑफ एवरेज रेवेन्यू, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, अ डंपिंग
in a dumping, a monopolist is a price taker in the world market. Yes, वर्ल्ड मार्केट में प्राइस टेकर है और होम मार्केट में क्या है, प्राइस मेकर. दिस इज ओनली द statement which is correct over here. The next one, match the followings. If you're going to see now different price discrimination, the different prices in the different market, यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये होता है आपके थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में. डिफरेंट मार्केट्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करते हैं. सेकेंड वन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड्स. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड्स, इट इज़ अ कंडीशन फॉर व्हाट, फॉर योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक कंडीशन है कि यहाँ पे गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है. अगर गुड्स एक मार्केट से दूसरे मार्केट में इजीली ट्रांसफरेबल हो रहा है तो कस्टमर्स विल गोइंग टू परचेज फ्रॉम दैट मार्केट जहाँ पे लो प्राइजेस क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के होंगे. अगर हायर प्राइजेस हैं तो दूसरे मार्केट में कस्टमर क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ से गुड्स परचेज करेंगे. दैट इज द ट्रांसफरेबिलिटी. नेक्स्ट वन, चार्जिंग द हायर प्राइजेस एट अ होम मार्केट एंड लोअर प्राइजेस इन द वर्ल्ड मार्केट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट योर एग्जैक्टली द डंपिंग. एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉफिटेबल होने के लिए हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट शुड डिफर इन द डिफरेंट मार्केट. कहीं पे ये इलास्टिक होना चाहिए और डिफरेंट मार्केट में इन इलास्टिक होना चाहिए. तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे लो प्राइस चार्ज करने की और यहाँ पे हायर प्राइस चार्ज करने की. और दोनों यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अर्न द ह्यूज प्रॉफिट फॉर द सेम. सो दिस इज हाउ क्लास what we have done. We have completed the objectives of your chapter number 7, pricing practices number 1, and in the next lecture we're going to start with the new chapter. नया चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है आपका सेकंड पार्ट प्राइसिंग प्रैक्टिसेस का. सो प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जो है एक ऐसा चैप्टर्स है जहाँ पे we're going to learn about the how the prices will be decided by the monopolist and the different market player. So till the time what all of you will going to do, you're going to see the previous videos, start preparing yourself, and we're going to continue in the next lecture. Thank you.